Namaste. I, J.D. Neha Sharma, Jyoti Vidyapur University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So in previous lecture, we have discussed about top-down parsing and top-down parsing techniques. In this lecture, we are discussing about bottom-up parsing and bottom-up parsing techniques. Okay, so uh, we uh, we already discussed that what is bottom-up parsing. So in bottom-up parsing, the traversing in parse tree is start from terminal nodes means to say leaf nodes to start symbol or terminal nodes to start symbol, right? And reduce in the same way. है ना? So what are the bottom up parsing techniques? So in this lecture we are studying these techniques about these techniques. So in bottom up parsing, first is shift reduce parsing, then LR parsing, and then in LR there are SLR parsing, LR parsing, and LALR parsing. Okay, so bottom up parsing starts from the leaf node of a tree and work in upward direction till it reaches to the root node. And here we start from a sentence and then apply production rules in reverse manner to reach the start symbol. ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ में करके देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने रिव्यूज करा था, राइट, नीचे से ऊपर के लिए. The image given is bottom-up parsing available, and the bottom-up parsing shift reduce parsing. So shift reduce parsing uses two techniques: shift step and then reduce step. So the shift step refers the advancement of input pointer to the next input signal symbol, which is called the shifted symbol, and this symbol is pushed onto the stack, and the shifted symbol is treated as a single node of the parse tree. And reduce step में क्या होगा कि when the parser finds a complete grammar rule and replaces it to LHS, it is known as reduced step, and this occurs when the top of stack contain a handle. To reduce, a pop function is performed on the stack which pop up the handle and replace it with LHS non-terminal symbol. Okay, so ALA parsing is all about the non-recursive shift reduce bottom up parsing. तो ये फर्स्ट होता है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का. एला पार्सर नॉन रिकर्सिव होता है. शिफ्ट रिड्यूस बॉटम अप पार्सर, इट यूजेस अ वाइड क्लास ऑफ contextual grammar which make it most efficient syntax analysis technique. ELA parser is also known as LRK. L stands for left to right scanning and R stands for construction of right most derivation. इन टॉप डाउन हमने देखा था LL यूज करता है क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट के लिए था और वो लेफ्ट डेरिवेशन के लिए यूज हो रहा था. ठीक है, पर यहाँ पे एल आर है, मीन्स एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ इनपुट स्ट्रीम एंड आर फॉर राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स. ठीक है, एंड के डिनोट द नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल. तो एल एल वन में हमने सेम चीज देखी थी, वही यहाँ पे, बस यहाँ पे कंसेप्ट अलग है क्योंकि बॉटम अप है तो ये राइट मोस्ट डेरिवेशन लेगा रिवर्स में. एंड इसी के तीन पार्ट्स हैं. सिंपल LR parser work on smallest class of grammar, few number of straight hands, very small table, and simple and fast construction. LR parser work on complete set of LR1 grammar and generate large table and large number of states, and slow construction. And LALR, which is look ahead LR parser. Right? So these are the part of LR parser and what is exactly LR parser. Now our next topic is operator precedence parsing, which is the type of bottom-up parsing. And here we can study this operator precedence parsing in detail with example. So the grammar rule for operator precedence parsing is no empty transition. ठीक है, ये जो एप्सिलॉन सिंबल है वो एम्प्टी के लिए होता है. सो नो एम्प्टी ट्रांजिशन एंड नो टू एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स आर प्रेजेंट देयर. तो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स यहाँ पे नहीं हो सकते. तो ये क्या होगा, पार्सर जो है वो टोकन्स को लेगा इनपुट और आउटपुट क्या देगा हमें, पार्स ट्री. तो इनपुट में कोई भी एप्सिलॉन जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ ग्रामर नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रूल है इसका. और सेकंड क्या है, कोई भी दो एडजेसेंट नॉन टर्मिनल नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ए बी एक साथ नहीं आ सकते कैपिटल्स में, है ना, एक साथ नहीं आ सकते. ए प्लस बी हो या फिर ई प्लस ई हो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉसिबल है. बट अगर मैं ई ई लेकर आऊँ तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसके बाद में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंसी. इसका नाम ही ऑपरेटर प्रेसिडेंसी पार्सर है, तो ऑफकोर्स ये ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के रूल पे काम करेगा. तो इसमें क्या होता है कि
कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं बिफोर इनपुट सिग्नल के लिए, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंसी पार्सिंग चलाने के लिए। तो इफ ए हैज़ हायर प्रेसिडेंसी ओवर बी, सो उसके लिए हम क्या लेंगे, ए ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन के साथ में यहाँ पे डॉट भी लगेगा। इसी तरीके से अगर ए की लोअर प्रेसिडेंसी बी की ज़्यादा है तो बी को प्रेफरेंस मिलेगी, तो बी की तरफ एरो होगा, ठीक है। और दोनों की इक्वल है तो इक्वल प्रेसिडेंसी। पर हम जब प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करते हैं तो हमने पढ़े थे टोकन्स, तो इसमें आईडीज होती हैं। आईडीज की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी होती है, हाई प्रेसिडेंसी होती है किसी भी ऑपरेटर के ऊपर। और डॉलर को हम एज ए एम्प्टी यूज़ करते हैं और इसकी सबसे कम प्रेसिडेंसी होती है, लो प्रेसिडेंसी होती है। और अगर हम मेजर मेजर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात करें तो जनरली हम जो ऑपरेटर्स मेजरली यूज में लेते हैं इनपुट स्ट्रिंग्स में वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट। तो प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंसी होगी और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की भी सेम प्रेसिडेंसी होगी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो प्लस माइनस की प्रेसिडेंसी जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से ज़्यादा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की प्रेसिडेंसी प्लस माइनस से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें यही नोट्स में बताया क्योंकि एसोसिएटिविटी पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंसी की बात हो गई है, ये प्रेसिडेंसी की टेबल है। देखो ये प्रेसिडेंसी की टेबल को ध्यान कैसे रखेंगे, आईडी और आईडी हमेशा एम्प्टी होगी क्योंकि आईडी और आईडी कभी इक्वल नहीं हो सकते और कुछ भी नहीं हो सकता है इनमें, तो ये एम्प्टी होगी यहाँ पर, ठीक है। आईडी और आईडी क्या होगी, हमेशा एम्प्टी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आईडी और प्लस की बात करूँ तो ऑफकोर्स आईडी की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है तो आईडी को क्या मिला, ग्रेटर देन मिल गया, ठीक है। आईडी और स्टार में देखो तो भी आईडी की ज़्यादा है, आईडी की सबसे ज़्यादा है तो सब में क्या आ गया, ज़्यादा ज़्यादा आ गया। पर आईडी और आईडी के लिए कुछ भी नहीं होगा, ये एम्प्टी रहेगा, डैश, ठीक है। उसके बाद प्लस और आईडी की देखूँ तो आईडी की ज़्यादा है तो आईडी को मिल गया। प्लस प्लस की देखो तो सेम है तो सेम में क्या होगा, प्लस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस और स्टार में मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा होती है तो मल्टीप्लिकेशन को प्रेसिडेंसी मिल गई। फिर प्लस और डॉलर में ऑफकोर्स प्लस की ज़्यादा होगी क्योंकि डॉलर की सबसे कम होती है तो इसको प्रेसिडेंसी मिल गई। फिर स्टार और आईडी की देखो तो आईडी की सबसे ज़्यादा होती है तो आईडी को हमेशा सबसे ज़्यादा मिलेगी तो आईडी को मिल गई प्रेसिडेंसी, ठीक है। स्टार और प्लस की देखो तो स्टार की ज़्यादा होती है क्योंकि स्टार स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन तो स्टार को मिल गई। स्टार स्टार की देखो जब दोनों बराबर होते हैं तो हम ये वाला सिंबल ही यूज लेते हैं, ठीक है, तो इसको मिल गई। स्टार डॉलर की हो गई तो डॉलर की सबसे कम होती है तो स्टार को मिलेगी। सेम रूल अप्लाई फॉर डिवाइड एंड डॉलर। तो डॉलर की अगर हम देखें तो सबसे कम होगी तो हमेशा किसको मिलेगी प्रेसिडेंसी, आईडी प्लस स्टार, और डॉलर डॉलर को वही सेम है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, इनपुट स्ट्रिंग है हमारी आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, इसके लिए हमने पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव से और राइट मोस्ट डेरिवेटिव से प्रीवियस लेक्चर्स में। इसी के लिए हम प्रोडक्शन रूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ई टेंस टू ई प्लस ई और ई इंटू ई और आई डी, ठीक है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का, एक बार वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्कैन करेंगे इनपुट लेफ्ट टू राइट एंड ट्राई टू डिटेक्ट what the operators and put a pointer on its location. Now scan backward till reaching the operator this and string between is or handle and replace handle by head of respective production and repeat until start symbol. तो बेसिकली हमें शिफ्ट रिड्यूस यूज करेंगे यहाँ पे और हम तब तक करते रहेंगे लेफ्ट टू राइट जब तक हमें हमारा स्टार्ट सिंबल नहीं मिल जाता। तो इसके एल्गोरिथम में सबसे पहले इनपुट ले लेंगे, स्टैक लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, इनपुट सिंपल टेबल होगी और रिपीट करते रहेंगे एज डॉलर बीस डॉलर जब तक हमें हमारा पूरा एम्प्टी नहीं मिल जाता, ठीक है। तो रिटर्न हो जाएगा, ए भी डॉलर है बी भी डॉलर है मतलब खाली है सब कुछ, तो रिटर्न हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी है तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक में, ठीक है, और मूव करेंगे इनपुट पॉइंटर को आगे। अगर बी की प्रेसिडेंसी ए से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है, जब तक कि हमारी सी की प्रेसिडेंसी बी से ज़्यादा नहीं हो जाती, एल्स क्या होगा, हमारा एरर आ जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमारी इनपुट स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, और इसके प्रोडक्शन रूल्स ध्यान से देख लो, तीन है, ई प्लस ई इंटू ई और आईडी, एक ही ई के लिए, ठीक है, तीन प्रोडक्शन है।
तो 3 ऑप्शन है हमें इसको रिड्यूस करने के। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा स्टैक है, ये हमारी इनपुट है, और ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक्शन रिमार्क का कॉलम बनाया ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ही होते हैं, स्टैक एंड इनपुट। हमने एल्गोरिथम में भी देखा था, इनपुट और स्टैक, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी। तो सबसे पहले हम पूरी ये ले लेंगे, इनपुट ले लें, क्योंकि हम बॉटम अप, अगेन याद रखो बॉटम अप कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग से शुरू करके हमें स्टार्ट सिंबल तक ट्रैवर्स करके जाना है, ठीक है। तो id प्लस id इंटू id हमारी इनपुट स्ट्रीम है। डॉलर जो है वो हम रखते हैं क्योंकि ये मतलब एम्प्टी के लिए काम आता है, लास्ट सिंबल होता है, एक तरीके से एंड सिंबल की तरह काम करता है। तो ये एंड सिंबल हमें रखना ही पड़ेगा, और ये एंड सिंबल हम स्टैक में भी रखेंगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये क्योंकि हमें हमारे पार्सर को पता कैसे चलेगा नहीं तो कि एंड हो चुका है, तो इसलिए हम एंड सिंबल रखते हैं डॉलर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे id प्लस id। अब यहाँ पे देखो डॉलर और id है, तो ऑफकोर्स id की प्रेसिडेंसी डॉलर से ज़्यादा है, तो क्या किया हमने, id को डाल दिया स्टैक में, ठीक है। अब id का कंपैरिजन किससे होगा, नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर आगे बढ़ गया और आ गया प्लस पे, ठीक है। id और प्लस में कॉस id की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, हमने पढ़ लिया अभी प्रेसिडेंसी, पीछे पूरी टेबल पढ़ी थी और मैंने बताया भी था id की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंसी होती है और एंड सिंबल की सबसे कम होती है। तो id की ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, id को रिड्यूस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, e से, जो हमारे प्रोडक्शन रूल था e टेंड्स टू e प्लस e स्टार e और e टेंड्स टू id, है ना। तो id से हमने, अब id है हमारे पास, तो ये किससे रिड्यूस कर दिया हमने, इसको रिप्लेस कर दिया e से, ठीक है। अब ये e और प्लस में किसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी, e और प्लस में किसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी, प्लस की प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ई कुछ भी नहीं है, ई तो सिर्फ एक लेटर है, तो ई की प्रेसिडेंस, ई को कंपेयर नहीं करेंगे हम प्लस के साथ में, किसको कंपेयर करेंगे, डॉलर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ई तो हमारी टेबल में कहीं है ही नहीं। हमारी टेबल में क्या है, डॉलर id मतलब ऑपरेटर्स, है ना, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी चेक करें, और ई क्या है हमारा, टर्मिनल है, ठीक है, सॉरी नॉन टर्मिनल सिंबल है, ठीक है। तो अब जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी चेक होगी वो किस किस के बीच होगी, डॉलर और प्लस के बीच होगी। तो डॉलर की सबसे कम होती है तो प्लस को प्रेफरेंस मिलेगी, तो प्लस क्या आ गया, अब यहाँ पे स्टैक में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगेन कंपैरिजन होगा, अब प्लस के साथ में id का कंपैरिजन होगा, तो id की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है तो id जो है वो स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। अब id का कंपैरिजन होगा मल्टीप्लाई से, और id की प्रेसिडेंसी मल्टीप्लाई से कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, id को फिर से रिड्यूस कर देंगे, तो e टेंड्स टू id था, तो ये क्या हो गया, e प्लस e। अब किससे हम कंपेयर करेंगे, प्लस, क्योंकि अपना ऑपरेटर क्या है, नेक्स्ट प्लस है, ठीक है। तो प्लस और स्टार में किसकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी, स्टार की प्रेसिडेंसी ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, स्टार को स्टैक में ले आएंगे। अब स्टार और id में से id की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है तो id को ले आए। अब id, अब ये तो खत्म हो गया डॉलर, ठीक है, मतलब एंड आ चुका है। अब ऑफकोर्स id और डॉलर में id की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, तो id को रिड्यूस कर दिया e से। अब स्टार और डॉलर में भी स्टार की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, इस e स्टार e को रिप्लेस कर दिया e से। अब प्लस और डॉलर में भी प्लस की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है, तो e प्लस e को रिड्यूस कर दिया e से, और यही हमारा स्टार्ट सिंबल था, तो ये एक्सेप्ट कर चुका है। अब इसको प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम अगर पार्स ट्री बनाएंगे, तो हमें यही मिलेगा id प्लस id इंटू id, मतलब हमारा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी हमने जो पार्सर चलाया है वो हमारा सही है, हम इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो e को गए, e से e प्लस e में रिड्यूस किया, फिर एक e को हमने e इंटू e से रिड्यूस किया, फिर इस e को id से रिड्यूस कर दिया, है ना, फिर इस e को भी id से रिड्यूस कर दिया और इसी को भी id से रिड्यूस कर दिया, तो हमें मिला क्या, अगर हम देखेंगे तो id प्लस id इंटू id, और यही हमें चाहिए। So this is how operator precedency parsing work, and this is the example of what, this is the type of what, bottom up parsing. So I hope you understand this OP parsing very well. So yeah, that's all for this lecture. Thank you so much.